I hope I am visible to everybody. Am I visible? Am I audible? Am I audible? मेरी आवाज सुन रही है सबको? Good afternoon, Amritpal. Fusion, yes, sir. Okay, thank you very much. Dear professional colleagues, my dear students, and all those who are present in this presentation. Well, I'm going to talk to you about a very interesting topic. What we say, enhancing longevity and adding 10 years to life. You know that we are all passing through very critical stage. COVID-19 is creating ripples all over the world. So many people are dying, people are suffering. Keeping that in the mind, I have chosen this topic to ascertain how one can live for a long period, how one can add few years to his life. Now, I will be confining my talk to two important terms. One is fitness and second is wellness. If I try to explain to you in very simple words the difference between fitness and wellness. Fitness in Hindi we say swasthata, and wellness in Hindi we say puran swasthata. And if there are so many phrases which have been developed over the years by people, well, somebody has rightly said, physical fitness and wellness are one's richest possessions. They cannot be purchased but are to be earned through regular and systematic fitness program and positive lifestyle habits. My dear listeners, physical fitness concept is known to everybody, but one has to develop positive lifestyle habits if you want to add many years to your life. Now, two great philosophers, Plato once said, the weaker the body, the more it commands. The stronger it is, better it obeys. Rousseau, another philosopher, he said, a person who does not know swimming is an illiterate person. Now, what he means by this is the person who will do swimming, he will maintain his or she will maintain her physical fitness, and that is why these terms do play an important role in the life of an individual. Well, I have to define fitness and wellness in very simple words. If I say wellness, what we say, the term wellness can be defined as the constant and deliberate effort to remain healthy and attain highest potential for well-being. Now, this concept of wellness was developed by Bill Heffler in 1976. Bill Heffler belongs to US, and what he said, that wellness is much more important than physical fitness of the individual. But if I define physical fitness in simple words, what we say, ability of the individual to carry out daily tasks with vigor and alertness, without undue fatigue, and with ample energy to engage in leisure time pursuits and meet emergency situations. What we say, physical fitness every human being needs. Whether it is a sports person or a laborer working in industry
or a sports person or a person working in the office. Everybody needs physical fitness. But the concept of physical fitness, you have to understand what he says. Carry out daily tasks without getting fatigued and have ample energy to involve in leisure time pursuits. What we say, every individual has about 2 to 3 hours of free time when he or she has to engage in certain pursuits. So you should also have energy for these activities. And last sentence is very important, to meet emergency situations. Emergency situations come in the life of every individual. अगर मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूं, even your mother at home, if she can perform all her 24-hour tasks well, what are the tasks of a mother? To cook food for the family members, to maintain the house, to wash clothes, to keep the house clean. Now, if there are 4 members in the family, if one day 4 guests come, the number increases to 8. She was normally looking after only 4 members, but when including guests, the number becomes more than 8. जब वो उनके प्रति भी सारे फंक्शंस को सही तरह से परफॉर्म करने में सक्षम हो जाती है, तो हम कहते हैं उसमें फिजिकल फिटनेस है. Well, I will also give you an example from sports. Let us talk about soccer, football. जो फुटबॉल का गेम होता है 90 मिनट का होता है. अगर मैच ड्रॉ हो जाए तो आपको 30 मिनट और खेलना पड़ता है. वो 30 मिनट की आपको और एनर्जी लानी पड़ती है, तो वो इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है. Well, I am sure that you are all aware of the variables of physical fitness. What we say, strength, speed, endurance. When I say endurance, I talk about muscular endurance and cardiorespiratory endurance, then power, agility, and flexibility. Now these, you see, today, simple physical fitness is not, it doesn't play a very significant role in the life of an individual. Today, it is a health-related fitness which plays a more important role. Health-related fitness plays a much more significant role. And if I take you back to the 4 aspects which our education has emphasized for a number of years, what did we say? Cognitive domain, affective domain, fitness domain, what we say health-related fitness domain, and psychomotor domain. Now, if these things are to be developed, well, one has to maintain health-related fitness, which is very important for the person to maintain his life, to help him to continue his tasks for 24 hours. Now, if you look at components of wellness, there are 11 components, and the first component is physical fitness. First component is physical fitness, and cardiovascular risk factor is the second factor. Then health education, alcohol and drugs, smoking, tension and stress, proper nutrition, cancer prevention, spiritual well-being, safety, and sexuality. Now, I would like to discuss very important concept here. Physical fitness is one component of wellness, that is, it carries a value of only 9%. Other 91% importance is given to cardiovascular risk factors, health education, alcohol and drugs, smoking, nutrition, safety, sexuality, spiritual well-being,
tension, stress, and smoking. Now, let us take up each aspect of physical fitness, this wellness. The first factor is physical fitness. What we say, it is important for an individual to exercise every day for about 30 minutes. 5 days in a week, that is 150 minutes in 1 week. Now, he should pursue different kinds of physical fitness activities so that one can maintain his physical and motor fitness. Now, if I say exercise is important, if I lay emphasis on kind of exercise to be done, what we say, aerobic exercise is important. 30 minutes of aerobic exercise. If I say exercise 5 days in a week, out of those 5 days, at least 2 days, you must do resistance exercises in addition to aerobic activity. Now, why resistance exercise? Let me try to explain this aspect in detail. When you do aerobic activity, you burn your fat only while you are performing the exercise, while you are engaged in aerobic activity. That is, if you do 30 minutes of exercise, the fat burning point comes after about 10 minutes of exercise. You burn your fat only about for 20 minutes. And when you involve yourself in a resistance exercise where you work against weight, work against your own body weight, what happens? You burn your fat during exercise, and once the exercise is finished, your metabolic rate remains high for next 2 to 2.5 hours, and therefore fat burning continues for another 2 to 2.5 hours. And that is why we say when you work for 5 days in a week, at least 2 days combine your aerobic activity with resistance activity so that you can burn more fat. My dear friends, when I say one should participate in exercise every day, now after listening my lecture, some of you may begin the exercise without taking proper precautions. If you have been regularly exercising, continue exercise. But if you want to start exercise, and if you have not been exercising, please do not forget to consult the doctor. Get a green signal from the doctor and start exercise only when doctor certifies that you can go ahead with exercise. Do not start exercising if you have not been exercising regularly without consulting the doctor. Now, second factor is cardiovascular risk factors. My dear friends, 50% all deaths all over the world take place only because of this single factor, that is cardiovascular fitness of the individual. Now, it is a leading cause of death all over the world. The deaths are caused because of several diseases, that is atherosclerosis, coronary heart disease, heart attacks, high blood pressure, peripheral vascular disease, and rheumatic heart diseases. All these diseases are associated with cardiovascular risk factors. Now, these diseases are the cause of death all over the world. And let me tell you, in India, 2.5 million deaths are caused by cardiovascular problems. And all these, if not all these, most of these diseases can be avoided if you keep your heart strong. That is, you must carry out exercise regularly. Make exercise as a part of your
daily routine. My dear listeners, the next factor is health education. Health education, it is a process that informs, motivates, and helps people to adopt and maintain healthy practices and lifestyles. It gives scientific knowledge about prevention of diseases and thus promoting good health. It informs people about the bad effects of alcohol, smoking, tobacco chewing, drugs, and physical inactivity. What health education does, it gives you education and changes your attitude towards what we say good health. Therefore, follow all those practices which can maintain good health, which helps you in maintaining good health. Fourth factor is alcohol and drugs. Well, you are all aware that Government of India has opened alcohol shops from today. And if you have seen the TV in the morning, thousands and thousands of people collected outside wine shops, alcohol shops, right from early morning. Well, please remember, alcohol and drugs both are harmful for the individual. Alcohol and drugs, they decrease reaction time, cause hearing and vision problems, lower concentration, and adversely affect the sexual function of the individual. They cause scarring of liver, increase risk of oral, esophageal, and liver cancer, increases blood pressure. They create stomach ulcers and heart stroke. Now, when you know this is known to everybody, but still people drink regularly. And if you stand outside an alcohol shop in the evening at about 5 o'clock, even a laborer who earns 500 to 700 rupees a day, जैसे वो अपने घर में वापस आता है, सबसे पहले वो शराब की दुकान में जाता है, 200-250 रुपए खर्च कर देता है एक एक पौवा खरीदने के लिए, उसको अपनी पैंट के अंदर घुसा के घर में जाता है, शराब पीता है और फिर घर में अपने बच्चों के साथ, अपनी वाइफ के साथ मिसबिहेव करता है. अगर वही 200-300 रुपए के वो फ्रूट खरीद के लेके जाए, अपने परिवार के सदस्यों को दे, उनकी हेल्थ में सुधार आएगा, उनको उनसे फायदा मिलेगा. And please remember, the drugs have become, they create more serious problems. They also cause serious health problems and lead to adolescent suicides. Therefore, they are to be avoided. The next factor, fifth factor, is smoking. My dear friends, 6 million deaths are caused by smoking all over the world, and 6,03,000 deaths are caused by passive smoking. Every cigarette which a person smokes, it shortens the lifespan of the individual by 5 to 11 minutes. तो 5 से 11 मिनट का मतलब है, अगर आप सस्ता सिगरेट पिएंगे तो एक सिगरेट आपके लाइफ के 11 मिनट कर देगा, कम कर देगा. अगर आप एक महंगा सिगरेट पीते हैं तो वो आपके 5 मिनट लाइफ के कम कर सकता है. एंड बीड़ी, हुक्का, चिलम, they are more harmful even as compared to smoking of cigarette. The problem which is increasing, females are taking to cigarette smoking. In India, about 15% females smoke. And if this trend of smoking continues, by 2030, the number of deaths will increase to 8 million. India has about 120 million smokers, and more than 1 million Indians
die of smoking each year. And the amount of money which you spend on smoking cigarette or bidi or hookah, if that money you spend for providing good nutrition to your family members, मैं कहता हूँ कि उनकी लाइफ में बहुत सारे ईयर जुड़ जाएंगे. जो हुक्का है, जो गांव में बहुत ज्यादा कॉमन रहता है, हुक्का क्या चौपाल बनती है, बीच में हुक्का होता है, लोग एक दायरे में बैठ जाते हैं, हुक्का उनके चारों तरफ घूमता है, और जो उस ग्रुप का सीनियर लीडर होता है वो क्या कहता है, हुक्के का जो धुआं होता है उससे नुकसान नहीं होता, ये हुक्का जो धुआं होता है ये पानी में से छन के आता है. लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड्स, हुक्का is 10 times more harmful than cigarette. Hookah is 10 times more harmful than cigarettes. And I'm sure whenever you have gone to see a movie, no movie begins without giving ads about the harmful effects of smoking, tobacco chewing, and hookah. They have become the main cause of mouth cancer, our lungs cancer. Therefore, smoking should be avoided. And let me tell you, I do not hesitate in sharing. मेरे घर के मैं जब गेट से बाहर निकलता हूँ, एक वहाँ सिगरेट का खोखा है, एक छोटी सी दुकान है, वहाँ रोज एक महिला आती है. She is not bothered about anybody. She doesn't bother about कौन उसके साथ से निकल रहा है. वो खड़े होके हाथ अपने कमर पे रखती है, सिगरेट पीती है और मुंह में से छल्ले निकालती है. And people passing by the side, she is not at all bothered about them. And this, let me tell you, smoking is dangerous. आपने पहले देखा होगा जब 2 साल पहले सिगरेट का जो पैकेट होता था उसके ऊपर जो वार्निंग लिखी होती थी उसको लेंस से देखना पड़ता, इतने छोटे शब्दों में लिखा जाता था, वो लेंस से भी नहीं दिखती थी प्रॉपर्ली. लेकिन अब गवर्नमेंट ने नियम बनाया है कि 70% एड का साइज होना चाहिए. इन स्पाइट ऑफ दैट, youngsters, ladies and males in large numbers are taking to this bad habit. And I request all my friends who are seeing this presentation, if you have this bad habit, shun it. It is not difficult to stop it. You need only willpower. आप में इच्छा शक्ति होनी चाहिए अगर आप इस हैबिट को रोकना चाहते हैं. बहुत सारे ऐड होते हैं, ये खाओ, इस चिंगम को खाओ, नार्कोटिन ये पियो, इसको खाओ. उनसे कोई फायदा नहीं होना चाहता है आएगा जब तक आप में इच्छा शक्ति नहीं है, आप इस खराब हैबिट को बंद नहीं कर पाएंगे. 6th फैक्टर इज टेंशन एंड स्ट्रेस. अगर आप WHO की रिकमेंडेशंस रेगुलरली पढ़ रहे हैं, WHO ने क्या कहा है कि बाय 2025 every 5th person in India will suffer from diabetes. मैं क्यों बता रहा हूं? डायबिटीज का एक कॉज टेंशन एंड स्ट्रेस भी है. टेंशन एंड स्ट्रेस ये कब आते हैं? जब आपका एनवायरनमेंट आपके ऊपर डिमांड्स डालता है, आप उन डिमांड्स को मीट करने में असफल हो जाते हैं तो आप स्ट्रेस के अंदर आ जाते हैं. नाउ स्ट्रेस हैज बिकम a part and parcel of every individual's life. हर मनुष्य की लाइफ में टेंशन आती है, हर मनुष्य की लाइफ में स्ट्रेस आता है. लेकिन ये प्रॉब्लम कब बन जाते हैं? when they start ruling your life. जब स्ट्रेस एंड टेंशन आपकी लाइफ को रूल करना शुरू कर देते हैं, दे क्रिएट प्रॉब्लम. जब MBA कोर्सेज हमारे देश में शुरू हुए थे, यंगस्टर्स MBA कंप्लीट करते थे और बड़ी बड़ी कंपनियां उनको वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की नौकरी देते थे. 1.5 लाख की सैलरी, 1 लाख की सैलरी. माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी कंपनी आपको 1 लाख, 1.5 लाख की सैलरी नहीं देगी जब तक आप उनको 25 से 30 करोड़ का बिजनेस नहीं दोगे. और उन टारगेट्स को मीट करने के लिए ये यंगस्टर्स स्ट्रेस में काम करते थे, टेंशन में काम करते थे. आप
आपने हेल्थ एजुकेशन में पढ़ा होगा, मैं मेनोपॉज की बात कर रहा हूँ। मेनोपॉज महिलाएं इसके बारे में जानती हैं, अगर पुरुषों को इसके बारे में नहीं पता, जब महिला के मेंसेस बंद हो जाते हैं अराउंड 40-44 ईयर्स के अंदर, उसको मेनोपॉज बोलते हैं। महिला के अंदर दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिनको हम बोलते हैं ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये दोनों हार्मोन्स जब तक महिला के मेंसेस कंटिन्यू रहते हैं, ये उनको हार्ट अटैक से बचाते हैं। लेकिन ये स्ट्रेस एंड टेंशन, आप क्या सोचते हैं मनुष्य की लाइफ में हार्ट अटैक किस एज में आता है? मैं बात करता हूँ 20-25 साल पहले हार्ट अटैक आता था, 50 साल के बाद, 55 साल के बाद। अगर मैं आपको बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे। एवरी डे 900 individuals die below the age of 30 years because of stress and tension, and that also includes females. मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दो हार्मोन्स हैं जो महिलाओं को हार्ट अटैक से बचाते हैं, लेकिन टेंशन एंड स्ट्रेस की वजह से उनमें भी 30 साल से पहले हार्ट अटैक्स होने शुरू हो गए हैं। इसलिए टेंशन एंड स्ट्रेस को अगर आप अपने आप से दूर रखना चाहते हैं, व्हाट वी से, एक्सरसाइज इज ए ग्रेट स्ट्रेस बस्टर। नियमित व्यायाम करिए, वो आपके स्ट्रेस को कम करने में आपकी सहायता करेंगे। एंड कुछ और भी तरीके हैं, डू प्राणायाम रेगुलरली, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। अगर आप करेंगे तो आप स्ट्रेस को कम करने में सक्षम हो जाते हैं। एक और टेक्निक मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, डू रिवर्स काउंटिंग। अगर आप 30 से शुरू करें, 30, 29, 28, 27, 26, 25, जब 1 पे पहुंचेंगे आप देखेंगे आपके स्ट्रेस का लेवल कम हो जाएगा। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसमें स्ट्रेस एंड टेंशन नहीं आती, लेकिन उस स्ट्रेस एंड टेंशन को कम करने के आपको तरीके सीखने चाहिए। स्ट्रेस मैनिफेस्ट्स इटसेल्फ इन फिजिकल एंड मेंटल एस्पेक्ट्स। मेंटल स्ट्रेस लीड्स टू फिजिकल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस लीड्स टू मेंटल स्ट्रेस। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा, प्रतिदिन एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, आप किसी भी तरह की चीज करिए, जैसे मैंने आपको रिवर्स काउंटिंग बोला, आप ब्रीदिंग पैटर्न अडॉप्ट करिए, ताकि आपका ये जो स्ट्रेस एंड टेंशन है ये आपको कम हो जाए। इन अमेरिका they have found out that incidence of heart attacks among Christians is much less as compared to others. उसका रीजन क्या है? जो ये टेंशन एंड स्ट्रेस ये हार्ट अटैक के कारण बनते हैं, जिसकी वजह से मनुष्यों के अंदर जो स्पिरिचुअलिटी है, भगवान में विश्वास, अगर आप वो करते रहेंगे तो आपका टेंशन एंड स्ट्रेस जो है वो नीचे रहेगा। नेक्स्ट फैक्टर इज प्रॉपर न्यूट्रिशन। गुड न्यूट्रिशन has a very close relationship to overall health and well-being of the individual. 1/5 deaths in India are related to poor nutrition, and 11 million deaths are associated with poor nutrition all over the world. Therefore, what we say when I say nutrition, well, somebody has sent a word that I have caused a good focus on stress and nutrition. Now, let us talk about nutrition. There are 7 nutrients which are important for every individual. If I count from beginning, number 1, carbohydrates, number 2, fats, number 3, proteins, number 4, minerals, number 5, vitamins, number 6, water, and number 7, fiber.
आपने जो सीनियर लोग हैं, जब आपने अपने कोर्स के दौरान न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा होगा, तो आपने 6 न्यूट्रिएंट्स ही पढ़े होंगे, लेकिन fiber has now been added as the 7th nutrient. Fiber is a complex carbohydrate, but fiber plays a very significant role in the nutrition for both males and females. अगर आप, मैंने जो पहले 3 न्यूट्रिएंट्स बोले हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, they provide energy. Then proteins, vitamins and minerals, they carry out growth of the body and tissue repair. And then vitamins, then minerals, fiber and water, they regulate body processes. These 7 nutrients, they play a very important role in the life of an individual. सारे इंपॉर्टेंट हैं. कार्बोहाइड्रेट्स, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो है ये 4.1 कैलोरीज एनर्जी प्रोवाइड करता है. 1 ग्राम प्रोटीन 4 कैलोरीज प्रोवाइड करती है. 1 ग्राम फैट जो है ये 9 कैलोरीज प्रोवाइड करती है. ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं. कई मनुष्यों में गलत धारणा है, वो सोचते हैं कि फैट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. फैट हमारे लिए प्रॉब्लम कब करते हैं? जब हम उनको जरूरत से अधिक मात्रा में खा लेते हैं. अदरवाइज फैट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. और आपको याद होगा, जब आपने पढ़ा होगा, 4 ऐसे प्रोटीन्स हैं A, D, E and K जो फैट में ही घुलते हैं. अगर आपके शरीर में फैट नहीं होगी, आप A, D, E and K आप विटामिन लेंगे, ये आपकी बॉडी को बिना सहायता दिए हुए आपके शरीर से निकल जाएंगे. फैट इज इंपॉर्टेंट. फैट आल्सो प्रोवाइड्स व्हाट वी से इंसुलेशन टू द बॉडी. जो मोटे लोग होते हैं उनको सर्दी कम लगती है, वो इंसुलेशन प्रोवाइड करती है. लेकिन मेरा मतलब ये नहीं है कि आप मोटे हो जाइए अगर आप इंसुलेशन चाहते हैं. लेकिन फैट जो है आपके ऑर्गन की रक्षा भी करती है. जो आपका विसरल एरिया है, जिसको आप पेट बोलते हैं, इसमें 3 बड़े इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं. इसमें लिवर है, इसमें फैट है, इसमें पैंक्रियास है. अगर इसमें फैट की मात्रा बढ़ जाती है, ये तीनों ऑर्गन्स को समस्या होती है. और आपको मालूम है, पैंक्रियास जो है ये इंसुलिन रिलीज करते हैं, जो हमारी शरीर के जो ग्लूकोज के बैलेंस को, शुगर के बैलेंस को मेंटेन रखते हैं. और आपको डायबिटीज तभी होती है जब आपके पैंक्रियास काम करने बंद कर देते हैं. और आपने सुना होगा लोगों की किडनीज डैमेज हो जाती हैं, लोगों के जो लिवर है वो डैमेज हो जाता है. ये 3 ऑर्गन्स जो हैं ये हमारे विसरल एरिया में है. इसलिए ये सारे के सारे फैट से कवर्ड रहते हैं. और आपने ये देखा होगा अपने माता पिता में, जब वो वृद्ध हो जाते हैं, जब उनकी उम्र 50-55 साल से ज्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है, तो उनके शरीर में झुर्रियां पड़नी शुरू हो जाती हैं. ये झुर्रियां क्यों पड़ती हैं? जो हमारी फैट होती है स्किन के नीचे, ये वहां से शिफ्ट होके हमारे विसरल एरिया और अपर बॉडी में आ जाती है. जो अपर बॉडी है उसमें तो मूवमेंट होता रहता, आम चलती रहती है, उसका पता नहीं लगता. लेकिन जब मनुष्य वृद्ध होता है, उसका पेट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है. इसलिए अगर आप नियमित व्यायाम करते रहेंगे, ये समस्याओं को, आप अपने शरीर को इन समस्याओं से बचा के रख सकते हैं. आपने बाकी चीजों के बारे में सबने पढ़ा होगा, लेकिन मैं फाइबर के ऊपर थोड़ा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं. हम क्या कहते हैं, हर पुरुष को 24 घंटे में 30 ग्राम फाइबर और हर महिला को 24 घंटे में 25 ग्राम फाइबर खाना चाहिए. क्यों खाना चाहिए इसको मैं आपको बता दूं. जो फाइबर होता है, जब आप फाइबर खाते हैं, ये फाइबर बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता.
ये आपके पेट में जाके इकट्ठा हो जाता है। और फाइबर की सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, ये पानी को सोखता है, ये हैवी हो जाता है। और जब ये हैवी हो जाता है, जब सुबह आप टॉयलेट जाते हैं, जिस चीज की आपके शरीर में जरूरत नहीं होती वो आपकी शरीर से बाहर निकल जाती है। सो फाइबर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एलिमिनेशन प्रोसेस ऑफ द बॉडी। अब जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो आप खाते हैं, आप हम क्या कहते हैं, फैट कम खाइए, लेकिन मैंने बोला फैट की आपके लिए जरूरत है। हम क्या कहते हैं, आपका 50 से 60% आपको कार्बोहाइड्रेट्स लेने होते हैं, 12 से 18% आपको प्रोटीन्स लेने होते हैं, एंड 15 से 25% आपको फैट लेनी होती है। फैट की मात्रा प्रोटीन से अधिक है। हम जब एक्सरसाइज करते हैं, हमारी जो एनर्जी है वो पहले एटीपी एंड सीपी से आती है, उसके बाद जो एनर्जी का सोर्स है वो ग्लाइकोजन पे शिफ्ट हो जाता है, और फिर अबाउट 60 सेकंड की एक्टिविटी के बाद ग्लाइकोजन शुरू होती है, और अबाउट 10 मिनट की एक्टिविटी के बाद फैट बिकम्स ए सोर्स ऑफ एनर्जी। मेरे कहने का तात्पर्य क्या है, अगर आप में मोटापा ज्यादा है, अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं, 10 मिनट के अधिक जितनी एक्सरसाइज करेंगे वही आपकी फैट को बर्न करेगी। अगर आप 10 मिनट से कम की एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी फैट बर्न नहीं होगी। फैट हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि बहुत सारी महिलाएं भी हैं, यंग गर्ल्स भी हैं जो इस लेक्चर को सुन रही होंगी। इसको एक इंपॉर्टेंट चीज, इस चीज को सुनिए, ऑफ कोर्स विच इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर द फीमेल्स, बट कुछ ऐसे मेल्स हैं जिनकी डॉटर्स भी घर में होंगी, कुछ ऐसी मदर्स हैं जो डॉटर्स घर में हैं। इसको आप सुनिए। ए मेल कैन मैनेज his or his normal lifestyle with 2 to 3% fat in the body, but a female needs minimum 7 to 9% fat in the body. Why a female needs 7 to 9% fat? महिलाएं इसको सुनिए, अगर महिला के शरीर में 7 से 9% फैट नहीं होगी, उसके जो मंथली साइकिल्स है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। She will start missing cycle, and आप मेरी बात से सहमत होंगे, साइकिल को मिस करना महिला के दिमाग में क्या क्या समस्याएं पैदा कर देता है। इसलिए फैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द बॉडी। महिलाओं को पता होगा, कुछ पुरुष भी इसके बारे में जानकारी रखते होंगे। एक टेक्निकल मेडिकल टर्म है मिनार्की। मुझे नहीं मालूम कि आप इस वर्ड का मीनिंग जानते हैं कि नहीं। मिनार्की इज स्टार्टिंग ऑफ द फर्स्ट साइकिल ऑफ द फीमेल, जो नॉर्मली 9.5 से 11.5 साल की उम्र में होता है। अगर उस फीमेल के अंदर 12 से 15% फैट नहीं है, उसकी मिनार्की डिले हो जाएगी, स्टार्टिंग ऑफ मेंसेस डिले हो जाएंगे, एंड दे कैन कॉज सीरियस प्रॉब्लम्स इन द लाइफ ऑफ ए फीमेल। देयरफॉर फैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट, लेकिन ज्यादा फैट आपके लिए समस्या पैदा करेगी। माय डियर फ्रेंड्स, ये 7 न्यूट्रिएंट्स मैंने आपको बताए। कोई भी न्यूट्रिएंट आप शरीर की रिक्वायरमेंट से अधिक लेंगे वो आपको समस्या करेगी, चाहे वो फैट है, चाहे वो प्रोटीन है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट है, चाहे वो विटामिन है, चाहे मिनरल्स है, चाहे वो फाइबर है, चाहे वो वाटर है। कोई भी चीज आप जरूरत से अधिक लेंगे वो आपके लिए समस्या पैदा करेगी। इसलिए एक और मैं आपको बता दूं कि रोज टीवी में ऐड आते हैं मल्टी विटामिन खाइए। नेवर टेक विटामिन विदाउट कंसल्टिंग द डॉक्टर। विटामिन कैन कॉज वेरी वेरी सीरियस प्रॉब्लम्स फॉर द इंडिविजुअल। अब जो पानी है ये हमारे लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। हम क्या कहते हैं, हर मनुष्य को कम से कम 8 से 10 ग्लास, मीन्स 2 लीटर पानी पीना अनिवार्य है। लेकिन जो एक्सरसाइज करते हैं उनकी पानी की मात्रा डबल हो जाती है, और जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं वो 6 से 8 लीटर पानी पी सकते हैं।
अभी मैंने कुछ देर पहले बोला, कोई भी न्यूट्रिएंट आप अधिक मात्रा में लेंगे तो वो प्रॉब्लम कर देगी। पानी की भी यही सिचुएशन है, अगर आप पानी को अधिक मात्रा में लेंगे तो वो भी इट कैन बिकम ए वेरी सीरियस थिंग इन द लाइफ ऑफ ए पर्सन। अमेरिका के अंदर दो स्पोर्ट्स पर्सन, when they were exercising, they were doing sit-ups and push-ups, दो दो बाल्टी पानी पी गए, दोनों की डेथ ऑन द स्पॉट हो गई। अब आप सोच रहे होंगे पानी पीने से क्या होता है? आपका ब्लड प्रेशर किससे मेंटेन होता है? आपका ब्लड प्रेशर जो हमारी बॉडी में जो नेट्रीमिया है, जिसको सिंपल वर्ड में हम सॉल्ट बोल देते हैं, इसको मेडिकल टर्म्स में नेट्रीमिया बोला जाता है। अगर आप बहुत अधिक पानी पी लेते हैं, इट कॉजेज हाइपोनेट्रीमिया। हाइपो मीन्स कम, इससे सॉल्ट का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है बॉडी में और वो आपके ब्लड प्रेशर को डिस्टर्ब कर देता है। दैट कैन आल्सो बिकम ए कॉज ऑफ डेथ। आप, मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि आप पानी पिएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन हर चीज को आपने लिमिट में लेना है, जितनी जरूरत हो उतना ही पीजिए। और एक और मैं आपको एक कमेंट देना चाहूंगा, पानी अगर आपके शरीर में 2 से 3% कम हो जाए, आपकी जो फिजिकल एबिलिटी एक्सरसाइज को परफॉर्म करने की, ट्रेनिंग करने की, वो कम हो जाती है। अगर पानी की मात्रा 7 से 9% कम हो जाए तो आपको हीट इलनेस हो जाती है। अगर आपका शरीर का पानी 10 से 11% कम हो जाए तो आपको हीट स्ट्रोक हो जाता है, और जो हीट स्ट्रोक होता है इट समटाइम लीड्स टू अदर सीरियस प्रॉब्लम, इससे डेथ होने की संभावना हो जाती है। माय डियर फ्रेंड्स, द नेक्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस्ड is cancer prevention. About 25% deaths are in the world are caused because of cancer. जो मैंने सबसे पहला फैक्टर बोला था कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर, वहां पे मैंने आपको बोला था 50% डेथ्स कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर से होती है। अगर इन दोनों फैक्टर को मिला दिया जाए, कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर्स एंड कैंसर प्रिवेंशन, 75% deaths can be prevented, and these cancer are caused because of lifestyle and environmental factors. And let me also give you some education. Both cardiovascular risk factors and cancers, they can be prevented as a result of exercise. अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, 3 तरह के कैंसर आप प्रिवेंट कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ब्रेस्ट कैंसर अमंग फीमेल्स, प्रोस्टेट कैंसर अमंग मेल्स, एंड कोलल कैंसर अमंग मेल्स एंड फीमेल्स। ये 3 तरह के कैंसर एक्सरसाइज आपको प्रिवेंट कर सकती है। इसलिए अपने लाइफस्टाइल को अच्छा रखिए। एनवायरमेंटल फैक्टर जो आपके लिए खराब है उनको मत अडॉप्ट करिए। स्मोकिंग मत करिए, आप हुक्का मत पीजिए, आप तंबाकू मत खाइए, आप बीड़ी मत पीजिए, और जो ड्रग्स हैं, जो डोपिंग है, उसको अवॉइड करिए, वो आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकती है। लेट अस गो टू नेक्स्ट फैक्टर, दैट इज स्पिरिचुअल वेलबीइंग। कुछ देर पहले मैंने आपको कुछ बोला था, अमेरिका में उन्होंने ये पाया है कि क्रिश्चियंस में जो हार्ट अटैक की समस्या होती है वो बहुत कम होती है, बिकॉज वो स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं। स्पिरिचुअलिटी है क्या? स्पिरिचुअलिटी है भगवान में विश्वास। अगर वो फायदा क्रिश्चियंस को हो सकता है तो वो हिंदूज को भी हो सकता है जब वो मंदिर में जाते हैं, वो मुस्लिम को भी हो जाता है जब वो मॉस्क में जाते हैं, वो बुद्धिस्ट को भी उसका फायदा होगा जब वो बुद्धिस्ट टेम्पल में जाते हैं। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज फॉलो स्पिरिचुअलिटी। अगर आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करेंगे तो आप में इंसिडेंस ऑफ कैंसर एंड हार्ट अटैक्स दे कैन रिड्यूस। नेक्स्ट फैक्टर इज सेफ्टी। व्हाट वी से, सेफ्टी ऑन द प्ले फील्ड, सेफ्टी ऑन द रोड, safety when you drive car, safety when you drive cycle, safety when you go on motorcycle. My dear friends,
Every day 400 people die of road accidents in India. That is about 7 deaths every hour. And you will be surprised to know India is number 1 in road accidents all over the world. Safety has to be maintained. हम तो फिजिकल एजुकेशन से डील करते हैं. हम जब बच्चे मैदान में खेलने जाते हैं, उस मैदान में हर सेफ्टी फैक्टर को दिमाग में रखते हैं. मैदान के अराउंड कोई ऐसी चीज हो जो खिलाड़ियों को नुकसान पहुंचा सकती हो, उसको दिमाग में रखते हैं. और आपको तो पता है स्पोर्ट्स के अंदर डिफरेंट गैजेट्स यूज किए जाते हैं, प्रोटेक्टिव गियर यूज किए जाते हैं जो खिलाड़ियों को सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं. एक मैं छोटी सी सजेशन देना चाहूंगा. आप में जो सुन रहे हैं सब ने अपने घर बनवाए होंगे, लेकिन मेरी एक सजेशन रहती है कि अगर आप घर बनवाएं तो कभी भी प्लग पॉइंट्स जो होते हैं उनको फ्लोर के नजदीक नहीं रखना चाहिए. कि जो छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं, जब वो क्रॉल करना शुरू करते हैं, तो छोटे बच्चे की हैबिट होती है कहीं वो छेद देखता है उसमें उंगली घुसा देता है, उसको बहुत बड़ी समस्या पैदा हो सकती है. सेफ्टी का पालन करना बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स. आप जब भी साइकिल में जाएं, कार चलाएं, जब आप मोटरसाइकिल चलाएं, सेफ्टी के नियमों का पालन कीजिए. नेक्स्ट 11th फैक्टर इज सेक्सुअलिटी. मैं ऐसा महसूस करता हूं इसके बारे में सबको जानकारी है, जानकारी होने के बावजूद भी लोग इसका सेक्सुअलिटी का सही प्रकार से पालन नहीं करते. आप सुन के हैरान हो जाएंगे, इस वर्ल्ड में 38 मिलियन पीपल HIV से पीड़ित हैं इस समय ग्लोबली, हु आर लिविंग 38 million people are living with HIV globally at present. And since the start of this epidemic, 74.9 million people were infected by HIV and 32 million died of AIDS. ये आपको जानकारी होगी. जो एड्स है वो पहले HIV से स्टार्ट होती है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. वो वायरस जो है उससे होती है और फिर वो एड्स में बदल जाती है. भारत में इस समय 2.4 मिलियन लोग हैं जो HIV से पीड़ित हैं और 1 मिलियन उनमें हैं जो एड्स से पीड़ित हैं. एड्स को हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. After 2000, the cases have reduced. HIV and AIDS peak was between 95 and 2000. Of course, over now the cases are on the decline. But still, you have to be very, very careful when you establish sexual relationship with anybody. You have to keep this in mind that if you get AIDS, of course now some medicines have been developed. Even with AIDS, your lifespan can be increased. If you have HIV, medicines can prevent HIV turning into AIDS. And now medicines, if female has AIDS, she can give birth to, or she has HIV, medicines can prevent the child which takes birth or save him from HIV and AIDS. These are now, in case you want to add years to life, मैंने स्टार्ट किया था एनहांसिंग लॉन्जिविटी. अगर आप अपनी लाइफ में कुछ साल ऐड करना चाहते हैं, आपको 6 चीजें अपने दिमाग में रखनी पड़ेंगी. अगर आप चाहें तो इनको नोट करिए. नंबर 1, कंट्रोल बॉडी वेट. आपको अपने बॉडी वेट को कंट्रोल करना पड़ेगा. मेंटेन ए प्रॉपर रेशियो ऑफ लीन बॉडी वेट एंड फैट वेट. मैं थोड़ा सा आपको बता दूं लीन बॉडी वेट और फैट वेट में क्या अंतर होता है. लीन बॉडी वेट में 3 चीजें इंक्लूड होती हैं. हमारे मसल्स, हमारी बोन्स एंड जो हमारी बॉडी में लिम्फ होता है. लिम्फ है तरल पदार्थ, और इसके अलावा जो बाकी हमारी बॉडी में वो फैट है.
इन दोनों की रेशो को अगर आप मेंटेन करके रखेंगे तो आपको जो अपना बॉडी वेट है उसको कंट्रोल करके रखेंगे। और सेकंड प्रोसीजर, अगर आप बॉडी वेट को कंट्रोल करना चाहते हैं तो नियमित एक्सरसाइज करिए, एटलीस्ट 30 मिनट्स ईच डे, 5 टाइम्स इन ए वीक। 150 मिनट की एक्सरसाइज करना आपके लिए बहुत अनिवार्य है। नंबर 2, प्रॉपर स्लीप 7 to 9 आवर्स। हर मनुष्य को 7 से 9 घंटे की नींद आना बहुत अनिवार्य है। इससे फायदा क्या होता है? जब आप 7 से 9 घंटे की नींद लेके सुबह उठते हैं तो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट जो है वो हाई रहता है, शरीर से हैप्पी हार्मोन्स डिस्चार्ज होते हैं, जो डोपामिन जो हमारे नर्वस सिस्टम से निकलती है वो आपको हैप्पीनेस देती है। ये तभी रिलीज होते हैं अगर आप अपनी नींद को पूरी कर लेते हैं। इसलिए 7 से 9 घंटे सोना मनुष्य के लिए अनिवार्य है। नेक्स्ट इज डेवलप गुड ईटिंग हैबिट्स। Eat breakfast every day. My dear friend, breakfast is the most important meal of the day. आपने सुना होगा एक छोटी सी कहावत, क्या है? Breakfast is the most important meal of the day. Eat breakfast like a king, lunch like a commoner and dinner like a miser. हम बिल्कुल उल्टा करते हैं। हमारा ब्रेकफास्ट का बेस्ट टाइम होता है 8:30 से 9, लंच का बेस्ट टाइम 1 to 1:30, डिनर का बेस्ट टाइम 7 to 9 PM। हम करते क्या है? डिनर खाते हैं रात को 10 बजे 11 बजे। कहां पे? बिल्कुल अपने पलंग के पास, अपने बिस्तर के पास खाते हैं और बिस्तर के ऊपर, और फिर कहते हैं मैं तो मोटा होता जा रहा हूं, मेरे में फैट बढ़ती जा रही है। इसलिए, और फिर क्या कहते हैं? अवॉइड ईटिंग बिटवीन मील्स। जो आप अपने 3 मील्स खाते हैं उसका 40% आपका ब्रेकफास्ट से आना चाहिए, 30% आपके लंच से आना चाहिए, 20% आपके डिनर से आना चाहिए, और 10% जो आप बीच में चाय पीते हैं, बिस्कुट खाते हैं, थोड़ा सा नाश्ता खाते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है? मैंने बोला है अवॉइड ईटिंग बिटवीन मील्स। क्या सुबह आप 8 से 9 बजे के बीच में ब्रेकफास्ट खा के जाते हैं, फिर जहां 11 साढ़े 11 बनते हैं, यार वो सीताराम के छोले भटूरे बड़े टेस्टी हैं, एक छोले भटूरे की प्लेट रगड़ दी। शाम के 4 बजते हैं, यार आज समोसे खाने का दिल करता है, समोसे की प्लेट आपने रगड़ दी। ये जो है ये आप में ज्यादा फैट प्रोड्यूस करते हैं। इन चीजों को अवॉइड करिए। देन नेक्स्ट इज रेगुलरिटी इन एक्सरसाइज। इसके बारे में बोल चुका हूं। एक्सरसाइज को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। जब भी समय मिलता है कम से कम 30 मिनट की एक्सरसाइज करना आपके लिए अनिवार्य है। नंबर 5, कंट्रोल टेंशन एंड स्ट्रेस। इसके बारे में मैं बहुत डिटेल में पहले भी बोल चुका हूं, एंड मैंने आपको बता दिया है कि जो WHO की ऑब्जर्वेशंस हैं कि बाय 2025 हमारे इंडिया में जो 1 among every 5 person is likely to suffer from डायबिटीज, उसका मुख्य कारण है जो स्ट्रेस है। एंड 6th फैक्टर इज अवॉइड इनटेक ऑफ एल्कोहल, स्मोकिंग ऑफ सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, चिलम, एंड रेफ्रेनिंग फ्रॉम हार्ड ड्रग्स। ये सबसे ज्यादा नुकसानदायक है, बहुत नुकसान देती हैं। इनको अवॉइड करिए, और मैंने इनको अवॉइड करने का आपको एक तरीका बता दिया। क्या है? विल पावर, डिटर्मिनेशन, इच्छा शक्ति आप में है तो इन सारी खराब हैबिट्स को आप अवॉइड कर सकेंगे। एंड इफ यू फॉलो दीज 6 प्रैक्टिसेस, आई कैन अश्योर यू मिनिमम 10 years इन योर लाइफ। एंड मैंने अभी बोला था सिगरेट स्मोकिंग के बारे में। देयर इज ए वेरी सिंपल कैलकुलेशन अवेलेबल। जो सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, हुक्का पीते हैं, चिलम पीते हैं, they die 10 years earlier.
they died 10 years earlier. एक यहाँ पे मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहूंगा. I was addressing IAS officers in Gwalior and talking to them about the bad effects of all these things. तो एक IAS ऑफिसर में जब लेक्चर मेरा खत्म हुआ, IAS ऑफिसर ने मेरे से बोला कि सर आप बोल रहे हैं कि सिगरेट स्मोकिंग, हुक्का, ये सारी बीड़ी पीना, ये सारी हमारे लिए नुकसानदायक है. मैं पिछले सप्ताह में जापान में था, वहां भी मैंने देखा बहुत सारे लोग सिगरेट पीते हैं. मैंने उसको बोला, मैंने कहाँ बोला कि जापान में सिगरेट नहीं पी जाती, कि अमेरिका में सिगरेट नहीं पी जाती, कि यूके में सिगरेट नहीं पी जाती. सिगरेट सारे वर्ल्ड में पी जाती है, और जो भी सिगरेट पीता है उसको नुकसान होता है. लेकिन वन थिंग यू मस्ट अंडरस्टैंड, हमारा एक सिगरेट जापान के सिगरेट 16 सिगरेट के बराबर होता है. जो नुकसान इंडिया में एक सिगरेट पीने से होता है, जापान में उतना नुकसान 16 सिगरेट पीने के बाद होता है. जो सिगरेट स्मोकिंग है ये सारे वर्ल्ड में नुकसान करती है. जो भी सिगरेट पिएगा उसको नुकसान होगा. नाउ लेट मी टेल यू व्हाट एक्सरसाइज कैन डू टू अ पर्सन. These I am going to share with you two stories. One story is of George Snell of USA. इसको बड़े ध्यान पूर्वक सुनिए. जॉर्ज स्नेल का बॉडी वेट था 180 kg. His blood pressure was 220 by 180. You can imagine the health condition of this individual. He was practically blind because he was suffering from diabetes. His blood glucose was 487. इन फिगर को याद रखिए, मैं दोबारा दोहराता हूं. बॉडी वेट 180 kg, blood pressure 220 by 180, systolic 220, diastolic 180. We still imagine how this man was living, and his blood glucose was 487. He was under medication. He was seriously ill. Now he came in contact with a physical educationist, an exercise enthusiast. You see what he suggested to him. He said, begin brisk walking. Please remember what I am saying. He said, begin brisk walking. What George Snell did, started with a brisk or fitness walking program. For 8 months, he very religiously did brisk walking and fitness walking. And for the next 2 months, he shifted over to jogging. And my dear friends, in these 10 months, he lost about 90 kg body weight. ये मैंने पहले ही आपको बोला है, ये कोई कहानी नहीं, ये रियलिटी है जो मैं आपको बता रहा हूं. He reduced 90 kg body weight. His blood sugar came down to normal values, and after about 2 to 3 months of exercise, he ran the first marathon. He ran 42 kilometers and 42.195 kilometers. And this is what exercise can do to a person. Second story which I want to share with you is, when I was working at Gwalior, I used to go for about 40 minutes of exercise every day. Those of you who have seen LNIPE, वहां का जो मेन बिल्डिंग है उसके बीच में एक बड़ा अच्छा ग्रासी प्लॉट है. I was exercising there. It was to my surprise, the Commissioner Gwalior landed up there and told me that my father, he said, my father is governor of West Bengal. His weight is more than 120 kg. And you know, many times the children add weight on the pattern of the parents because heredity also plays an important role. He said, I do not want to die because of obesity. I want to come and work with you every day. I said, okay, I will impose certain conditions on you, certain conditions about what you should eat, what you should not drink,
But when you come from home to my institute every day, come in a cycle, no security with you. Well, if a security comes, he can also follow you on a cycle. My dear friends, now please listen what happens. His weight was almost 98 kg. He was worried that he will also add weight like his father. Now, what happened? He came to me very religiously 5 to 6 days in a week on a cycle. Now, Gwalior, during when I was studying there, it was an old town. जो कमिश्नर का ऑफिस था, he had to climb 2 stairs to enter his office. Now, उसको क्या कहता था कि मैं जब सीढ़ियां चढ़ता हूँ, about 30 से 35 सीढ़ियां मुझे चढ़नी पड़ती हैं, मुझे बीच में रुकना पड़ता है, थक जाता हूँ. Now look what happens to him. He started working. After 3 months of regular exercise with me, when after 3 months he came to me for exercise, he said, Dr. Uppal, now I climb my stairs in one go. I don't stop in between. After 6 months of exercise, he told me, sir, now I run practically upstairs and climb the stairs. And his condition improved so much. But as the luck would have it, after 1 year, he applied for a job in Air India. He was appointed Director Air India and got transferred from Gwalior, joined Air India. After 3 years, again he came back to Gwalior to attend a marriage. When I met him, he was again that Mr. Sane, about 97 kg weight. He said, I did not get a person like you who could motivate me to do exercise. My dear listeners, this is what I wanted to share with you. Please remember what I have said. And I have said in the beginning, nobody wants to die. And if you want to add many years to your life, please remember what I have shared with you. And I have given you 6 important factors. And remember the story of George Snell. Thank you very much, my dear friends, my dear students, and my professional colleagues. Well, I don't know whether you have all these, you have some doubts in your mind. And if you have some doubts, please ask. Because I was told that my lecture will continue for about 60 minutes. And I have concluded in exact 60 minutes. But even if you have some problems, some doubts, please ask questions. Thank you everybody for your good comments. अगर मुझे दोबारा मौका मिलेगा तो मैं निश्चित जानना चाहूँगा कि मेरा लेक्चर सुनने के बाद आप में से कितने लोगों ने नियमित व्यायाम करना शुरू किया है. प्लीज रिमेंबर व्हाट आई सेड. अगर आप व्यायाम नहीं कर रहे हैं रेगुलरली, बिना डायरेक्ट डॉक्टर की सलाह लिए हुए व्यायाम शुरू मत कीजिए. आपको प्रॉब्लम हो सकती है. बट देन मेक एक्सरसाइज एज ए पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन and develop good lifestyle habits. I can assure you, you will add many more years to your life. Well, from my side, I have concluded my lecture. Thank you very much. जो मेरे स्टूडेंट सुन रहे हैं,
उनको मेरा आशीर्वाद। ये मेरे कलीग्स हैं प्रोफेशन के, उनको मेरा नमस्कार। फिर मौका मिलेगा आपके पास आऊँगा। और इसी तरह से मैंने ये टॉपिक इसलिए चुना था कि जो ये हार्ड टाइम है इसको अपने दिमाग में रखिए। कन्फाइन योर सेल्फ टू द हाउस, घर से बाहर मत निकलिए और अपने माता पिता की देखभाल करिए, उनको देखिए। थैंक यू वेरी मच। आई एम कंक्लूडिंग माई लेक्चर।